Let us start our part number 2 of exercise 5.3 part 2. In part 2 we have discussed question number 10 to 20. 10 to 20. Let us start question number 10. What is question number 10? Show that A1, A2 and AN form an AP where AN is defined as below. AN आपको given है, आपको निकालना क्या है? Find the sum of first 15 term in each case. Sum of 15 terms निकालना है. Let us start. AN आपको given है 3 plus 4n. Put n is equal to 1. So what is A1? A1 is 3 plus 4 multiply 1, that is 3 plus 4, it is 7. Put n is equal to 2. So it is 3. A2 equal to 3 plus 4 multiply n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2. 3 plus 8 it is 11. Put n is equal to 3. n की जगह 3 रखेंगे तो हमारी A3 क्या आएगी? 3 plus 4n है तो 4 multiply 3 it's 3 plus 12 it is 15. So AP हमारी क्या पड़ेगी? A1 क्या था? 7, A2 11 एंड A3 is 15. ये हमारी AP है. AP के बेस पे हमने क्या निकालना है? 15 टर्म का सम. सो AP फाइंड आउट करते हैं, हम निकाल सकते हैं A और D की वैल्यू. व्हाट इज A? A इज द फर्स्ट टर्म, D 11 minus 7 इट इज 4. सो क्योंकि 15 टर्म का सम था तो n is equal to 15. I hope you can easily find out the value of Sn, sum of 15 terms. What is the formula of Sn? Sn equal to 2a plus n minus 1 into D. What is n? N is S15. 15 by 2. 2a. A is 7 plus n minus 1. 14 multiply D. 4. So it is 15 by 2. 14 plus 56. It is 15 by 2. 14 plus 56. 70. When cancelled by 2, it is 35. So 15 multiply 35. It is 5 to 5. That is the answer. Sum of 15 term is 5 to 5. So I hope you will easily complete your part number 2, in which an is 9 minus 5n. Put n is equal to 1, 2 and 3. Find the AP, find the value of from AP A and D. Then find out the sum of 15 terms. So let us discuss question number 11. So what is question number 11? Question number 11. If the sum of first n term of AP is 4n minus n square, sum of n term यानी Sn आपको given है 4n minus n square. What is the first term? फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म यहाँ क्या होगी? S1 या A1 सेम होती है. What is the sum of टू टर्म यानी S2? What is the second term? सेकेंड टर्म क्या होगी? Similarly find the third and 10th term and nth term. What is to be find out? Only given to us question number 11 sum of n term. Sn आपको given है 4n minus n square. इसी के बेस पे आपको S1 निकालना है, A निकालना है और S2 निकालना है, A2 निकालना है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म आपने इसके बेस पे निकालनी है. सो पुट n is equal to 1. n पुट 1 करते ही ये आएगा 4 multiply 1 minus 1 square. It is 4 minus 1 that is 3. तो हमारा फर्स्ट वैल्यू आ जाती है S1. S1 is equal to 3. S1 always equal to A1 always equal to A. It is 3. So हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा? S1 या A की वैल्यू that is 3. So put
n इज इक्वल टू 2। व्हेन वी पुट Sn में हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, S2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वेयर, दैट इज 8 माइनस 4, इट इज 4। इट इज अवर सेकेंड वैल्यू दैट वी फाइंड आउट। S2 की वैल्यू क्या होगी, 4। हमारा सेकेंड आंसर आता है S2 दैट इज 4। व्हाट इज S2? सम ऑफ टू टर्म। अब सम ऑफ टू टर्म क्या होता है, A1 प्लस A2 का पहली दो टर्मों का सम कितना आ गया हमारे पास, 4। फर्स्ट टर्म हमें पता है 3, तो हमारी सेकंड टर्म क्या होगी, तो सेकंड टर्म होगी 4 माइनस 3, इट इज 1। एज वी नो A2 इक्वल टू A प्लस D, सो इट इज 1। A we find out in last part, A is equal to 3, so what is the value of D? It is D equal to 1 minus 3, D equal to minus 2. When we find out the value of A and D, we found out any term of AP. First we find out A2 हमारा आंसर था, that is 1। उसके बाद A3 निकालना है। A3 कैसे निकालेंगे, A plus 2D, what is A? A is 3, 2 multiply D minus 2, it is 3 minus 4 minus 1। A4, A plus 3D, सॉरी A4 इट्स A10 है, तो क्या करेंगे A प्लस 9D, A3 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 माइनस 18, दैट इज A10 आपकी 10th टर्म जो होगी माइनस 15। और इसके बाद हमने निकालनी है nth टर्म। व्हाट इज nth टर्म? nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम nth टर्म निकालते हैं तो हम A की वैल्यू नहीं रखते। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा है माइनस 2, सो इट इज 3 क्योंकि माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2n, सो इट इज an इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये आपकी n टर्म AP की आ जाएगी। सो लेट अस रिवाइज दिस क्वेश्चन। Sn आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक Sn के बेस पे आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। सो हम फर्स्ट इसमें पुट करेंगे n की जगह 1। जब 1 पुट करते हैं तो हमारी S1 की वैल्यू आएगी। S1 क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज 3। उसके बाद हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो हमारी S2 क्या आ जाएगी, वो 4 आएगी। S2 जब 4 आ जाती है तो S2 का मतलब होता है हमारा 2 टर्म का सम, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म को जोड़ देते तो हमारा 4 आएगा। फर्स्ट टर्म वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 3, सो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेकेंड टर्म। व्हाट इज सेकेंड टर्म? A2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास A प्लस डी इक्वल टू 1। व्हाट इज D? D इज इक्वल टू माइनस 2। D पता लग गया, A पता लग गया, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट फाइंड आउट की A3, उसके बाद A10, उसके बाद n टर्म। जब n टर्म निकालते हैं तो हम n की वैल्यू पुट नहीं करते। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 11। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड होते हैं। सो 7 से डिवाइड होने वाले 7, 14 नंबर डिविजिबल बाय 7, तो 7, 14, 21 कितनी टर्म आपको लेनी है? इट्स 40 टर्म्स का सम आपने निकालना है। सो व्हाट इज ए 7? व्हाट इज D? D इक्वल टू 14 माइनस 7, 7। N, व्हाट इज N? N इज इक्वल टू 40। आई होप यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S40। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सो फर्स्ट
पहले फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 कौन से होते हैं? 8, 16, 24 डैश डैश। और कितनी टर्म का सम निकालना आपने? 15 टर्म का। आई होप इट इज सेम क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ, फाइंड करना आपको सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच के जो ऑड नंबर है उनका सम निकालना है। तो व्हाट इज ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50? स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लस 2 नहीं 3 5 सो ऑन। और हमारा 50 से 50 इवन नंबर है, सो हमारा लास्ट नंबर क्या होगा? 49। यू कैन सॉल्व इट एज लाइक क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप सॉल्व करेंगे। पहले 49 हमारी nth टर्म या लास्ट टर्म होगी, वहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब n की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो हम Sn की वैल्यू को निकाल देंगे। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब। सी, a contract of construction job specify the penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day, 250 for the second day, 300 for the third day. The penalty for each succeeding days being 50 more than the preceding day। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन का जो क्या है? दंड लगाता है, पेनल्टी लगाता है अगर टाइम पर काम नहीं होता। एक दिन के लिए जो पहला दिन अगर काम लेट होता है तो उसके लिए 200 रुपये पेनल्टी है, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300। इस तरह जो पेनल्टी है वो क्या है? और हर अगले दिन 50 रुपये बढ़ती जाती है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी। पेनल्टी के तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने पैसे पे करेगा अगर वो जो काम को डिले करता है, लेट करता है, कितने दिन के? 30 दिन के लिए। यानी 200 रुपये एक दिन की पेनल्टी है, अगले दिन की पेनल्टी है 250 और इस तरह 50 रुपये डेली की पेनल्टी बढ़ती जाती है। तो 30 दिन बाद वो कितने टी के तौर पर देगा? सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द एपी फॉर दिस क्वेश्चन? 200, 250, 300 and so on for 30 days. So A is equal to 200, D is equal to 250 minus 200 that is 50. What is N? N is equal to 30. हमें 30 डेज की टोटल पेनल्टी निकालनी है, सो इसलिए हम निकालेंगे S30 की वैल्यू। I hope you have to complete this question, question number 15. Let us start question number 16. Very important question, question number 16. A sum of 700 is to be used। 700 रुपये को बांटा जाना है 7 प्राइजेस के अंदर एक स्टूडेंट्स के स्कूल के जो क्या थे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए 700 रुपये को इनाम के तौर पर बच्चों में बांटा जाना है। कितने बच्चों में? 7 बच्चों में, जिनको कैश प्राइज दिए जाने हैं। ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। पिछले प्राइज से हर जो प्राइज होगा वो 20 रुपये कम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइज। लेट अस डिस्कस। यहाँ पर टोटल 700 रुपये हैं। 700 रुपये को 7 बच्चों में या 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा। अगर एक पहले बच्चे को 100 मिलेंगे तो दूसरे वाले को 80, तीसरे वाले को 60, इस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हमारे पास क्योंकि टोटल कितने हैं 700 रुपीज, सो SN हमारे पास आ गया है 700। व्हाट इज N? क्योंकि टोटल 7 प्राइज हैं तो N की वैल्यू कितनी रहेगी? 7। और क्योंकि हमारा जो है प्रीसीडिंग है, लेट अस डिस्कस आवर एपी। ए तो हमारा डी उससे 20 कम होगा तो हमारी एपी बढ़ेंगी ए माइनस 20, ए माइनस 40 और हमारे पास कितनी टर्म होंगी? 7 टर्म्स। सो
व्हाट इज डी? डी इज इक्वल टू ए माइनस 20 माइनस ए, दैट इज माइनस 20. Sn इक्वल टू 700. S7 इक्वल टू 7/2 2a प्लस n माइनस 1 6 इंटू डी माइनस 20. Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 2a ए की वैल्यू पता नहीं है, n हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू है माइनस 20. 7/2 और ये कितना था 700. 7/2 2a माइनस 120 इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा 2/7 इक्वल टू 2a माइनस 120 कैंसल्ड. इट इज 200 इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस 120 था, इधर आगे प्लस 120, दैट इज 320 इज इक्वल टू 2a और a हमारा आ गया 160, यानी 320/2 160. हमारी जो फर्स्ट प्राइज होगी वो कितनी होगी 160. सेकंड प्राइज इज 140. थर्ड प्राइज 120. फोर्थ प्राइज 100. फिफ्थ प्राइज 80. सिक्स्थ प्राइज 60 एंड सेवंथ प्राइज इज 40, क्योंकि हमारा जो हर एक था वो क्या था उससे पिछले से 20 कम है. लेट अस रिवाइज. हमारे पास टोटल 700 रुपीज हैं, उसको हमने 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 7 प्राइज जो रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, जो फर्स्ट नंबर पे उसको जितने मिलेंगे अगले वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेंगे. सो हमारे पास टोटल जो है उसको हमने SN मान लिया. टोटल टर्म 7 है इसलिए n की वैल्यू 7 हो जाएगी. या तो आप डायरेक्ट D लिख सकते हैं क्योंकि D जो है घटता जा रहा है, तो माइनस में D की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 20. आप AP बना सकते हैं. फर्स्ट को हमने मान लिया लेट फर्स्ट प्राइज इज A एंड नेक्स्ट वन इज A माइनस 20. SN का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से किसकी A की वैल्यू निकालेंगे. A की वैल्यू जो होगी वो हमारी फर्स्ट प्राइज होगी और उसके बाद सेकंड प्राइज उससे 20 कम. इस तरह हमारे पास जो 7 प्राइज होंगे वो कितने के होंगे ₹160, ₹140, ₹120, ₹100, ₹80, ₹60 एंड ₹40. Let us discuss question number 17. What is question number 17? Question number 17 is, in a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक स्कूल के बच्चों ने क्या है पेड़ लगाने के लिए का सोचा. इट वॉज डिसाइड, ये फैसला लिया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी सेम द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, कि जिस क्लास में जो बच्चे हैं क्लास के अनुसार ही पेड़ लगाएंगे. जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, सेकंड के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे और थर्ड के बच्चे, इस तरह से कंटिन्यू होगा 12th तक, यानी जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो 12 पेड़ लगाएंगे. देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन क्लास के 3 सेक्शन हैं. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17. इन क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट क्लास जो है वो 1 पेड़ लगाएगी 1 ट्री. सेकंड क्लास जो है वो 2 ट्रीज प्लांट करेगी. थर्ड क्लास 3 ट्री. और क्योंकि हर एक के सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे 3 ट्रीज और सेकंड क्लास के हो जाएंगे 6 ट्रीज और थर्ड के हो जाएंगे 9 ट्रीज. क्योंकि हर एक के 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा और सेकंड के एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा तो 3 सेक्शन 6 पेड़ लगाएंगे एंड सो ऑन. और ये हमारे पास कितनी है 12th तक के जो है क्लासेस हैं. सो हमारी एपी क्या बनती है 3, 6, 9 एंड सो ऑन 12 ट्री टर्म्स हैं. A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 6 माइनस 3 एंड N इज इक्वल टू 12. What is SN? SN is equal to n/2 2a plus n minus 1 into D. S12 निकालना है. 12/2 2a 6 plus n minus 1 11 क्योंकि 12 है हमारा n और D कितना आया 3. It is 6 multiply
11 33, 33 प्लस 6 39, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 24 trees. Total number of trees planted is 234. That is your answer. I hope you will understand. This main point is this. फर्स्ट क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, कुल 3 पेड़ लगेंगे। सेकंड क्लास वाले बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 2 लगाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। इसी तरह हमारी एपी बन जाती है, क्योंकि 12वीं तक की क्लासें हैं तो हमारे टोटल टर्म हो जाएंगी 12। इस तरह हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकाल सकते हैं। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? A spiral is made of successive semicircle with center alternated at A and B. Starting with the center A of ready 0.5, 1.0 and so on in the figure. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle? Means देखो क्वेश्चन में इस तरह से एक स्पाइरल बनाया गया है, उसकी जो रेडियस है वो 0.5 बढ़ती रही। जो स्टार्टिंग की रेडियस है वो कितनी है 0.5, 0.5, 1.0 फिर 1.5, इस तरह से रेडियस जो है वो बढ़ती गई। तो हमें बताना है कि ये कितने सर्कल है। 13 अगर स्पाइरल है तो हमारे पास क्या है, इस तरह कितनी लेंथ के होंगे। हमारा फर्स्ट स्पाइरल है हाफ, जो सेमी सर्कल की फॉर्म में है 0.5, अगला 1.0 रेडियस के साथ। सो ये हमारा क्या बनता है, एक सेमी सर्कल। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल की होती है बेटे सर्कल 2πr। अगर ये सेमी सर्कल हो जाए, सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ, यानी 2πr/2 यानी πr। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल πr और ये हो जाएगी 0.5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल की क्या होगी, इट्स πr। सेकंड बार में क्या होगा 1.0 मल्टीप्लाई पाई, इट इज 1 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल की क्या होगी πr, और यहाँ r क्या होगी, यहाँ फर्स्ट की r1, सेकंड की r2, ये 3 होगी, ये होगी 1.5 पाई सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमारी एपी बनती है 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई एंड सोन। और यहाँ पे कितनी 13 टर्म्स का हमने निकालना है। पाई हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी एपी जो बचती है वो कितनी 0.5, 1, 1.5 एंड सोन 13 टर्म्स। हम क्या करेंगे, इन 13 टर्म का एसएन निकालते हैं और उस एसएन को हम क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एपी से पहले हम एसएन निकालेंगे। एसएन के लिए हमारे पास ए और डी। ए 0.5, व्हाट इज डी, डी इज इक्वल टू 1.0 माइनस 0.5, इट इज 0.5। व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू 13। इसके बेस पे हम एसएन निकालेंगे, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S13 क्या होगा, n/2, n13/2, 2a, 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई डी, डी 0.5। सो ये क्या होगा आपका 13/2 मल्टीप्लाई 12 5 जा 60, 6.0 और 1 7 यानी 91/2 सेंटीमीटर जो है 13 स्पाइरल है उनकी लेंथ आती है। दैट इज बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल πr, क्योंकि सर्कल के 2πr, हमारे यहाँ है स्पाइरल जो है उसको सेमी सर्कल की फॉर्म में है तो πr होगी।
तो फर्स्ट की क्या, फर्स्ट आर जो है 0.5, तो हमारी लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल 0.5 पाई, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल पाई r2 यानी 1.0 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 3 क्योंकि 0.5 जो हमारी रेडियस बढ़ रही है तो 0.5। इस तरह हमारी जो एपी बनती है जिसमें 13 टर्म आएंगे, ये पाई को हमने कॉमन लेके बाकी एपी बना दी और इससे हम एसएन निकाल रहे हैं। तो ए की वैल्यू निकाल दी एपी के बेस पे, डी की वैल्यू निकाल रहे और एन जो हमारा 13 रहेगा तो इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया और हमारा जो 13 टर्म का सम है वो क्या है, एसएन आया है 91/2। लेकिन टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 91/2 एंड व्हाट इज पाई, पाई ऑलवेज बी इक्वल टू 22/7/13 टू 11। सो टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 133 सेंटीमीटर। Discuss question number 19. It is also very important question. What is question number 19? In question number 19, 200 logs are stacked in the following manner. कि इस तरह से जो लट्ठे हैं वो रखे गए हैं, किस तरह, जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसमें 20 लट्ठे रखे गए हैं सबसे नीचे वाली रो में, उससे ऊपर वाली में 19 और उससे ऊपर वाले में जो है 18 लठ रखे गए हैं। सो ऑन हाउ मेनी रोज आर देयर, तो इस तरह कितनी रो बनती हैं अगर जो टोटल लॉग्स हैं, लॉग्स में जो ये लठ हैं ये टोटल कितने हैं 200, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, अगर ये टोटल 200 हैं और इस तरह रखे जाते हैं, नीचे वाली रो में 20, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, तो 200 लट्ठे बनाने में कितनी रो बनेंगे और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लट्ठे आएंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 19 टोटल लॉग्स जो हैं, टोटल लॉग्स हैं हमारे पास 200, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एसएन की 200। हमें और दिया गया है क्या, नीचे वाली रो में 19, 20 फिर 19 फिर 18 एंड सो ऑन, एंड कितनी आपको एन की वैल्यू निकालनी है, कितनी जो रो बनेंगी और लास्ट टर्म क्या रहेगी, यानी लास्ट रो में कितने इकट्ठे होंगे। इसे हम ए निकालेंगे, ए 20, डी 19 - 20 इट इज -1। सो पुट द वैल्यूज इन एसएन, एसएन हमें गिवन है 200 n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये हमारा गया है 200, n हमारे पास नहीं है, a हमारे पास है 20 सो इट इज 40, n -1 सेम, d की वैल्यू -1 एंड इट इज इक्वल टू 200, n/2 40 माइनस n प्लस 1 200, सो n/2 41 minus n it is 200, so 41 n/2 minus n square by 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं n/2 को दोनों से और इक्वल टू 200, या 200 को टेक 2 एज एलसीएम, सो इट इज 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 2 400 इक्वल टू 0, और हमारी इक्वल टू 400, इसको रखते हैं उधर लेके जाते हैं तो हमारे एपी क्या बनेगी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, यानी हमने n स्क्वायर को उधर लेके प्लस का, 41n को माइनस का और ये इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, सम और प्रोडक्ट, सम -41 और प्रोडक्ट जो होगा वो 400। सो व्हाट इज द नंबर whose product is 400 and sum is 41, that is 16 and 25, both have minus sign. You have discussed in exercise 2.2 n square minus 16n minus 25n plus 400 equal to 0, n कॉमन ले लेते हैं, n minus 16 minus 25 n minus 16 0, n minus 25
और n-16 इक्वल टू 0, सॉरी, और n-25 इक्वल टू 0 और n-16 इक्वल टू 0, n हमारा हो जाएगा 16 और n हो जाएगा 25. बट देयर इज नो पॉसिबल वैल्यूज फॉर n, देयर आर 2 वैल्यूज. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट टर्म. n may be 25 or 16. So let us find out last term an. an is equal to a plus n minus 1 into d. an equal to a plus n minus 1 into d. यहाँ हम 25 से निकालेंगे और यहाँ हम लास्ट टर्म को निकालेंगे 16 से. a 25 is equal to a plus 24d. What is a? a is 20 plus 24 multiply d minus 1. 24 minus 24, that is minus 4. Not possible. But why? Please think. a 16, a plus 15d. a हमारा है 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई डी माइनस 1, सो इट इज 20 माइनस 15. ए 16 जो होगा वो कितना होगा 5. ये हमारा आंसर होगा. यानी टोटल नंबर ऑफ रोज आर 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो दैट इज 5. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट टर्म के गट्ठे निकालने. इस तरह आपके लट्ठे रखे जाते हैं तो सबसे टॉप रो में जब हम लॉग्स की नंबर निकालेंगे तो वो नेवर भी नेगेटिव, कभी माइनस का नहीं आता. लेट्स रिवाइज. टोटल लॉग्स जो है 200 है. जो लास्ट रो है 20 से स्टार्ट होती है, 20 एक कम होता जाता है. तो हमें निकालना है कि टोटल कितनी रोज हैं. तो उसके लिए हम यहाँ से एडी निकालेंगे. टोटल एसएन हमें दिया गया है, यानी टोटल लॉग्स जो है लट है वो 200 है. एसएन का फार्मूला लगा के हमारी जो इक्वेशन बढ़ती है, जिसमें हमने एन की वैल्यू को नहीं पुट किया है, इक्वेशन बढ़ती है एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400. इसका सम माइनस 41, प्रोडक्ट 400. हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, माइनस 16 और माइनस 25. जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 41 और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 400. सो पुट इन द इक्वेशन एन स्क्वायर. इन दोनों को एन लगा के लिखना है. पहले दो में से जो कॉमन आता है एन कॉमन आता है और लास्ट वालों में से जो कॉमन आता है वो हमने बाहर ले लिया. हमारी ब्रैकेट सेम हो गई, तो एक ब्रैकेट में n माइनस 16, दूसरी में n माइनस 25. ठीक है, n माइनस 25 से वैल्यू 25 आई, लेकिन दूसरे n से वैल्यू आती है 16. बट एक ही क्वेश्चन के अंदर दो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम पहले लास्ट टर्म निकालेंगे. लास्ट टर्म हमारी n टर्म होती है, तो एक बार a25 की वैल्यू निकालें और दूसरी बार a16 की. जब हम a25 यानी लास्ट टर्म निकालते हैं तो वो माइनस की आती है, लेकिन कभी भी लट्ठे माइनस में नहीं रखे जा सकते. सो क्या हुआ कि ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 16. Let us start question number 20. In question number 20, in a potato race, a bucket is placed at the starting point. Starting point पे एक bucket रखी गई है, which is 5 meter from the first potato. जो ये पहला potato इससे कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है. And the other potato are placed 3 meter apart in a straight line. और जो बाकी है वो इससे 3 मीटर की दूरी पर है. अगला 3 मीटर, अगला इन ए स्ट्रेट, एक सीधी लाइन में. देयर आर 10 पोटैटोज इन द रो, इन द लाइन. और टोटल जो पोटैटो हैं वो कितने हैं, 10. ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट. कि एक जो कंपटीटर है वो बकेट में से स्टार्ट करता है और जो पास वाला पोटैटो उसको पहले उठाता है, वापस जाता है, इसको बकेट में डालता है, रन्स बैक, फिर अगले को उठाने के लिए जाता है, फिर अगला पोटैटो डालता है और फिर उसको किसमें, बकेट में डाल देता है. इस तरह वो कंटिन्यू करता है जब तक कि सारे पोटैटोज क्या हैं, बकेट के अंदर डाल नहीं दिए जाते. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन. कि
सारे पोटैटो डालने के लिए जो कंपटीटर है उसको क्या है, कितनी दूरी तय करनी पड़ी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ एक बकेट रखी हुई है, इस बकेट में जो है फर्स्ट पोटैटो डालना है और जो ये पोटैटो है ये 5 मीटर की दूरी पर, जो इसको उठाने जाता है आता है तो डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड कितनी होती है, 5 जाने की और 5 आने की। सो इट इज 5 मल्टीप्लाई टू 10 मीटर। अगला जो पोटैटो इससे 3 मीटर की दूरी पर है तो डिस्टेंस कवर इन सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में कितनी कवर होगी, 5 ये प्लस 3 यानी 8 गई 8 आई तो 16 मीटर। डिस्टेंस कवर इन थर्ड राउंड में कितनी होगी, 3 और बढ़ गए तो 5 प्लस 3 8 और 3 11। सो इट इज 11, 11 गई और 11 वापस आई तो ये हो गए 22 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारी एपी क्या बनी, 10, 16, 22। टोटल कितनी टर्म है, 10 टर्म। सो इस टोटल टर्म में डिस्टेंस कवर करने के लिए हम क्या निकालेंगे, S10 निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कवर। तो वो क्या होगी, n/2 2a plus n minus 1 into d. What is n? N is equal to 10. What is a? 10. What is d? 16 minus 10, 6. So put the value. S10 equal to n/2, 10/2. So 2a 20 plus n minus 1, 10 minus 1 9 और d है 6. So it is 5 और 20 plus 15, sorry 5 multiply 20 plus 54, that is 5 multiply 74, 370 meter. Total distance to put all the potato in the basket is 370 meter. सो फर्स्ट राउंड में क्योंकि ये फर्स्ट जो था 5 मीटर की दूरी पर पोटैटो था, 5 गई 5 वापस आई तो 10 मीटर। फिर अगले 3 और तो 5 और 3 8 गई 8 वापस आई 16। इस तरह 3 और बढ़े तो 22 हमारी एपी बन गई, जिसके अंदर कितनी टर्म होंगी, 10 टर्म। क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो 10 टर्म होगा, सम निकालेंगे। S10 इक्वल टू n/2 या SN भी लिख सकते हैं। SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AD की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, n हमारा 10 है। सो व्हाट इज S10, 370. टोटल डिस्टेंस टू पुट ऑल द पोटैटोज इन बास्केट इज 370 मीटर. I hope you will understand exercise 5.3 and chapter 5. Thank you.